Now see, is the screen visible? Okay, fine. I will start again that part. Originator bank. The bank will sell off all the securities which are mortgaged to the bank. In against, special purpose vehicle will give cash to the bank. See the process, no? Bank gives assets, sell off the assets, and special purpose vehicle is giving cash to the bank. Okay, now, now look at this cursor. Look at this part. This part. Special purpose vehicle, मतलब जो institution है ये, special purpose vehicle will issue, will what to say? Yes, um, will convert, will convert these assets which he has got from the bank. Okay, he will convert these assets into the securities, see, into the securities, and these securities will be invested. These securities will be given to the investors. These securities will be sold off to the investors. That means further in my cycle, there are new investors. See, here also we had an investor who was borrowing money from the bank and giving assets in the name of mortgaged assets. Okay? But here in this chain, in this cycle, we have one more investor in our picture. What are these investors playing role as? These investors are buying the securities from special purpose vehicle, and special purpose vehicle has converted high value financial assets which are taken from the bank into the securities, into the form of securities. Now those securities are given to the investors in the form of mutual funds, shares, debentures, bonds, etc. Securities में सब आ गया, fixed deposit, public deposit, whatever you say will be counted in securities. Okay. Now, special purpose vehicle will issue securities to the investors, and investors in against will give cash to the special purpose vehicle, because investors are buying securities, no? So to buy the security, you need to pay the cash. So investors are paying cash to the special purpose vehicle, and this same cash is going to the bank. The special purpose vehicle has got cash from the investors who purchased securities, and this same cash is being given to the bank, is being given to the originator for purchasing the assets, and bank has got the cash now, so he will be able to give the loan to the investors, I mean the borrowers, the individuals. Are you getting the cycle, how this cash is getting rotated? Yes, from that particular cash, bank can give, grant loans. Yes, interrelated है. आई बात समझ में? तो यही तो प्रोसेस है, यही मेरा सिक्योराइजेशन प्रोसेस है. अब आपने बोला, आपने सोचा होगा मैम ने ये लिक्विडिटी के बारे में तो बताया ही नहीं. बता रही हूँ, ये कुछ नया नहीं है. ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, लिक्विडिटी सपोर्ट करता है. मतलब ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, his main role is to convert those assets which are illiquid, which cannot be converted into cash easily. They are there. Special purpose vehicle has important role to convert those assets into liquid assets. Convert those assets which are illiquid into liquid. So he plays role, a very important role in giving a liquidity support. So he is the central part of the picture. Okay. Now to special purpose vehicle, there is a credit rating agency who will look after to the institution, his workings, and I mean their workings, and whatever has to be done or do's and don'ts. So credit rating agency will
give the ratings to the special purpose vehicle. Are they performing better? Is there anything else that we can improve in? So I mean, वो आप नहीं भी देखोगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो चलेगा. मतलब मेरा मेरा जो मेन साइकिल है ना वो ये है. ओके. अच्छा यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है मैंने. क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो. ये पढ़ो. When the loan is granted against assets, जब लोन को एसेट्स के अगेंस्ट में ग्रांट किया जाता है एंड असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू द सिक्योरिटीज, और वही असेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जाता है, इट बिकम्स मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटीज. एमबी एमबीएस बोलते हैं इसको. एमबीएस, मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटीज. क्यों इसको मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो असेट्स मॉर्गेज थी, गिरवी थी, अब गिरवी वाली असेट्स को ही तो हमने सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया ना. बेशक बैंक ने कन्वर्ट किया, पर किसी और ने वो ही असेट्स को कन्वर्ट किया जो कि गिरवी रखी हुई थी, है ना. जो कि बैंक के पास गिरवी रखी हुई थी, वो ही असेट्स को, वो ही सिक्योरिटीज को हमने, वो ही असेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया. इसीलिए इसको बोला जाता है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज. आई बात समझ में? एमबीएस क्या होता है? ठीक है. इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस. सो दोज असेट्स व्हिच आर इलिक्विड, we have to convert them into securities which are then bought and sold in the financial market, जिसको हम आगे चल के फाइनेंशियल मार्केट में बाय एंड सेल कर सकते हैं. इजीली ट्रेडेबल होता है, मैंने ऊपर बताया आपको. इफ यू नोटिस द फर्स्ट लाइन कॉल्स डेट एज एन एसेट. अब आपने पहली लाइन पे यहाँ पे पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्टिंग डेट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेट इनटू सिक्योरिटीज. अब ये डेट ही तो होता है, क्योंकि ये जो असेट्स है वो बिकती तो है नहीं, तो ये डेट ही तो होता है. तो डेट को एसेट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, सिक्योरिटीज में. दिस इज बिकॉज डेट इज अ लाइबिलिटी फ्रॉम द फॉर द बोरोवर. क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसको डेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो चेन में आते हैं वो बोरोवर्स ही तो होते हैं, जिनको मनी चाहिए बैंक से बोरो करने के लिए. वो बोरोवर्स ही है, वो डेट है ना, जो सबसे पहले बोरो करने के लिए असेट्स को गिरवी रखे जाती हैं. तो असेट्स को गिरवी रखने के लिए बोरोवर मनी बोरो करने आते हैं. तो बोरो करना मतलब डेट ही तो हो गया. आ रही है बात समझ में? सो डेट वाली सिक्योरिटीज को, सॉरी, डेट वाली असेट्स को, गिरवी वाली असेट्स जो होती हैं वो डेट वाली असेट्स होती हैं. जो डेट वाली असेट्स होती हैं उन्हीं को तो मैं असेट्स में, उन्हीं को तो मैं सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रही हूँ. मॉर्गेज वाली असेट्स को मैं सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रही हूँ. अब वो मॉर्गेज वाली असेट्स तो गिरवी वाली असेट्स है ना, बैंक की खुद की असेट्स तो है नहीं. ठीक है, वो गिरवी वाली एसेट्स है. ठीक है, गिरवी रखी हुई है. दिस इज बिकॉज डेट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बोरोवर. ठीक है, डेट हमारे लिए क्या होता है? हमने कर्जा लिया ना बैंक से, तो हमारे लिए तो लाइबिलिटी है ना वो. बट फॉर द लेंडर इट इज एन एसेट. लेकिन बैंक जब आपको पैसे देती है उसके लिए तो एसेट है ना, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना. वन कैन ट्रेड द सिक्योरिटीज क्रिएटेड फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन. तो इस प्रोसेस में जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें हम अपने सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं, स्टॉक के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में. म्यूट अनम्यूट करते क्यों हो? मैंने कुछ पूछा ही नहीं. So in simple words, securitization process where a financial company combines several of its assets, बहुत सारी assets को combine करती है कंपनी into consolidated financial instrument, एक financial instrument बनाती है उसको and convert करती है उसको securities के form में. बहुत सारी assets है आपके पास जो काम की नहीं है, उसको आप इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके उसको कंसोलिडेट करोगे, ट्रांसफर करोगे किसमें? सिंगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज. ठीक है. देन फाइनेंशियल कंपनीज इशू दी सिक्योरिटीज. अब यही सिक्योरिटीज को मार्केट में आप इशू कर सकते हो. किसको? इन्वेस्टर्स को. अच्छा, इन्वेस्टर्स को अगर आपने इशू किया तो आपके पास कैश आएगी, है ना, बिजनेस में कैश आएगी ना.
कैश ही तो चाहिए, बिजनेस में कैश चाहिए, तभी तो ये सब हम करते हैं चीजें। और क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स ने सिक्योरिटीज खरीदी है, तो उनको टाइम से इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता रहेगा ना, तो वो बेचारे इंटरेस्ट भी अर्न करते रहते हैं। ठीक है। वी ऑल्सो नो सच सिक्योरिटीज बाय नेम एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, मतलब मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज का दूसरा नाम होता है एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। एसेट मतलब जो हमारी हाई वैल्यू एसेट्स थी उसको हमने मॉर्गेज करके फिर उसके बाद सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया, इसीलिए इसका नाम होता है एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। और इसका दूसरा नाम होता है कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। कोलेटरलाइज्ड मींस गिरवी रखना, किसी एक के बजाय दूसरी चीज को गिरवी रखना कोलेटरल बेसिस पे, सिक्योरिटी बेसिस पे, कि आप मेरा पैसा खा तो नहीं जाओगे। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं खा नहीं जाऊंगा आपका पैसा, आप है ना बेशक मेरी ये वाली असेट रख लो, जब मैं खा जाऊंगा तो आप ये वाली असेट बेच देना, तो आपके पास कुछ तो सिक्योर्ड है ना, आपकी मनी सिक्योर्ड है ना। कोलेटरल मीन सिक्योर्ड, तो आपका जो डेट है वो सिक्योर्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। आपके सर पे जो ऑब्लिगेशन है, जो लाइबिलिटी है, उसको आप उसको असेट के फॉर्म में गिरवी रख के सिक्योर बना सकते हैं, कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। और इसका तीसरा नाम है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, एमबीएस। तो एमबीएस बोलो, एबीएस बोलो, सीडीओ बोलो, एक ही बात। ABS usually pools different assets like credit card, auto loans and more like MBS pools mortgage only. ABS में आप बोल सकते हो कि उसमें क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, ऑटो लोन्स भी होते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल लोन्स जैसे जैसे कार के लोन एंड ऑल। लेकिन जो MBS होता है ना, उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी एसेट्स ही मॉर्गेज होती है, उसमें मॉर्गेज ही होता है सिर्फ। तो ABS एंड MBS के बीच में बस इतना ही फर्क है, प्रोसेस सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो शायद हम अभी नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर लीजिंग में बोलूं तो लीजिंग तो हम कर चुके हैं। व्हाट इज लीजिंग? लीजिंग क्या होती है? दो कंपनीज के बीच में अग्रीमेंट टू लेट देम यूज, वन कंपनी इज गिविंग एंड राइट टू यूज द कैपिटल एसेट्स, मशीनरी, कैपिटल एसेट, हाँ, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विपमेंट्स, वेरी नाइस, equipments. So one company who is the owner of the equipment is allowing the another company to use the capital asset, example machinery, on the rental basis. So in against you have to pay rental charges. Okay, and you will never get ownership. समझ में आ रहा है? A lessee will never get an ownership of the machinery. The ownership always will be in the hands of lesser. Two parties are involved, lesser and lessee. Very nice. I'm looking at the chat simultaneously. Very nice. Okay. So you already know about leasing and we have revised it. Okay. You have to read it out. वही सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पे that I just said. वही सब लिखा हुआ है, पढ़ो, समझेगा। ठीक है। अब यहाँ से हम कल करेंगे, यहाँ से हम कल करेंगे। ठीक है। आई थिंक कल हमारा, आई थिंक नहीं, आई बिलीव कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। आई विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। वी हैव लेक्चर टुमारो? डू वी हैव लेक्चर टुमारो? No, ma'am. नो? ओके No, ma'am. ओके ओके Holiday. ओके, नो प्रॉब्लम। हॉलीडे है ना तुमको मेरी तरफ से? ठीक है, कोई बात नहीं, थर्सडे को कर लेंगे। ठीक है, तो थर्सडे वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। Okay, till then take care, take rest, keep Bye, revising. ma'am. Happy Janmashtami, everybody. Take Same to care. you, ma'am. Yes, keep helping your mamas. ठीक है? Okay. Take care, everybody. Yes. Bye bye. Take care. Enjoy your day. And don't forget to study. Okay? Bye bye.